ओके। लेक्चर के तीसरे हाफ में आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। पिछले पिछले ये हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम वाले टॉपिक का ही कंटिन्यूशन है। अच्छा बच्चों, ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उगोनिया का डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और एंथेरिडियल डेवलपमेंट इन बोथ केसेस, इन बोथ टाइप्स, मैक्रेंड्रस एज वेल एज नेनेंड्रस टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स। द प्रोसेस is same. The process of fertilization is same in both cases, in case of macandrous type as well as in case of the nanandrous type of oogonial species. What happens that mature oogonium, it secretes a drop of mucilage through the slit or the pore, which is called a receptive spot and which is located at a distal end on oogonial wall. ठीक है, and that mucilage, the drop of mucilage secreted through receptive spot that sends a chemical signal to antherozoids. As a result, antherozoids start moving towards, or we can say they start rushing towards. They move fast in response to that chemical signal. Okay, and the movement is called chemotactic movement. Okay, so they start rushing towards oogonia chemotactically, and the one that reaches first, it enters into oogonium through the receptive spot एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये डिटेल में देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी हियर विच इज oogamous टाइप। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स ऑलवेज बच्चों। ठीक है, विच आर साइटोगेमी मींस fusion of cytoplasm of male and female gametes, and then occurs a karyogamy, that means fusion of nuclei, that is male nucleus from antheridium and female nucleus from oogonium, and thus we get a diploid structure, or we get a fertilized egg, or ovum, which now becomes a diploid structure. Okay, and that diploid structure synthesizes a thick cell wall and becomes a zygote. So with this सेक्सुअल प्रोसेस फिनिशेस, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं रहता है बच्चों, वो पोस्ट सेक्सुअल या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उडोगोनियम में जो ये डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है, जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ और लाइफ स्पेन ऑफ उडोगोनियम। ठीक है, बाकी सारे समय में ये हैप्लॉइड फेज में रहता है। दैट मींस इन उडोगोनियम हैप्लॉइड फेज वेरी मच डोमिनेट्स ओवर डिप्लॉइड फेज। व्हाई? Because in Oogonium, zygote is the only diploid structure which soon undergoes meiosis and it produces haploid structures. ठीक है बच्चों, तो what happens, ये वाला डायग्राम भी बना लेना है आप लोगों ने बच्चों फर्टिलाइजेशन का। ये लास्ट डायग्राम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। A slit is or a small pore is produced toward the distal side of oogonium by gelatinization of the cell wall, and cytoplasm oozes out a part of a small portion or a drop of mucilage that sends chemical signal. In response to those chemical signals, the antherozoids start moving towards it. The one which is first or the luckiest, it enters into
oogonium passing through this slit or small pore and mixes with the female gamete, which is our large protoplast, means a structure bound by a plasma membrane. अब आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताता हूं बच्चों, जैसे ही जो फर्स्ट एंथीरोजोइड ओगोनियम के अंदर या एग और ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, द मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी चेंजेस, मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट हिंडर्स और इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ second entherozoid or more entherozoids which are still running towards it, which are still trying to enter into it. ठीक है बच्चों, ये फिर नेचर के द्वारा दी गई हमारे ये कैरेक्टर्स है बच्चों इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के. ठीक है, what I mean to say, immediately after entry of the first entherozoid, the membrane property changes so that it becomes impermeable for rest of the entherozoids. ठीक है, and fertilization occurs which involves two steps. First is cytogamy, second one is karyogamy. As a result, we get a diploid structure or a fertilized egg. That diploid structure synthesizes a thick cell wall around it and becomes zygote, and it is reddish or brownish in color because of excessive accumulation of oily substances. ठीक है, with this our sexual process finishes. इसके बाद आएगा बच्चों, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, अलग से एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन उडोगोनियम. ठीक है, वो क्या होगा असल में जब जाइगोट जर्मिनेट करता है, वो वाले इवेंट्स इस टॉपिक के अंडर रहते हैं. ठीक है, ये मैंने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है. कई बार एग्जाम में 2-3 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिस्क्राइब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट और डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी इन और थैलस और फिलामेंट इन उडोगोनियम, या कह सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन और डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन उडोगोनियम, या हम इसको बोल सकते हैं कि पोस्ट सेक्सुअल इवेंट, कि डिस्क्राइब पोस्ट सेक्सुअल इवेंट इन उडोगोनियम. ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, जो ये जाइगोट है विच इज अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये पेरिनेट कर सकता है बच्चों. बाई चांस अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये एकाइनिट की तरह ही ये पेरिनेट कर सकता है, कम ओवर कर सकता है अनफेवरेबल पीरियड को. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ थिक सेल वॉल एंड इट हैज स्टोर्ड or it has accumulated a large quantity of food. So what happens in post fertilization event? Zygote liberates by death and decay of its parent wall, which is oogonial wall, and settles at bottom of water body and undergoes a period of rest. And on approach of favorable condition, it again germinates. ठीक है, this is our zygote, a thick walled structure laden with food material. ठीक है, and just before fertilization it undergoes a meiosis. As a result, it produces 4 daughter protoplast pieces. Daughter protoplasts 1, 2, 3 and 4. ठीक है, जो ये प्रोटोप्लास्ट 4 बनेंगे बच्चों, इसका मतलब है कि जो ये प्रोटोप्लास्ट पीसेस हैं इनमें सेल वॉल नहीं है, ये नेकेड स्ट्रक्चर्स हैं. और उसके बाद ये 4 प्रोटोप्लास्ट पीसेस में से हर एक आर मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ माइन्यूट, वेरी माइन्यूट पाइरिफॉर्म मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मियायोजुओस्पोर. जो आज का लेक्चर मैंने शुरुआत किया था उसमें मैं 4 डिफरेंट काइंड के टाइप के प्रोपेग्यूल्स बताए थे. उनमें से जो लास्ट वन है और जो स्मॉलेस्ट है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियायोटिक डिवीजन इन जाइगोट. ठीक है बच्चों, और फाइनली व्हाट हैपेंस that the meiozoospores are liberated by breakdown of zygotic wall and come out into open water enclosed inside a vesicle, just like that of zoospore and just like that of androspores. ठीक है, then these freshly released meiozoospores swim in water for some time
then settle down at bottom with their anterior and downwards, retract their flagella, and then germinate to produce a new vegetative thallus or new filament of Oedogonium. अब आगे का ये मैं रीड करता रहूंगा सिंपली, ठीक है। बिफोर जर्मिनेशन जाइगोट टर्न्स ग्रीन, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर प्रोटोप्लास्ट्स, एंड दिस protoplast pieces metamorphose into a small pyriform multiflagellated meiozoospores. Meiozoospores come out and enclosed inside a vesicle, और ये वेसिकल किस चीज का बना होता है बच्चों? म्यूसिलेज का ही. आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ द पेरेंट वॉल विच इज द जाइगोटिक वॉल आर रिलीज्ड इनटू ओपन वाटर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेसिकल. जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे म्यूसिलेज डिसॉल्व हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और मीआयोजूओस्पोर्स फिर लिबरेट हो जाएंगे. दे विल स्विम इन वाटर फॉर सम टाइम एंड देन विल सेटल डाउन एट बॉटम विद एंटीरियर एंड डाउनवर्ड्स. ये मैंने ज्यादा डिटेल नहीं किया बच्चों, ठीक है. रिट्रैक्ट देयर फ्लैजेला एंड फाइनली जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू थैलस और फिलामेंट ऑफ ओडोगोनियम. So with this our lecture finishes. ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं बच्चों परसों मिलते हैं, कल का दिन मैं आपको रेस्ट दूंगा, ठीक है. परसों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो रहेगा लाइफ साइकिल इन और लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम, जो कि मैकेंडस टाइप में अलग रहेगा, नेनेंडस टाइप में अलग रहेगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए.